citizens. Let's welcome us with a big round of applause. Good morning, honorable chief guests, respective principal ma'am, teachers and all my dear friends. My name is Sakshi and I'm from class 7th A. Today I'm not here just to deliver a speech. I am here to share our responsibility. When we hear the word citizen, we often think of right, the right to speak, the right to freedom, the right to education. But today I stand here to talk about something even more important. Our duties as responsible citizens. When we hear the word citizen, a nation does not become great because of its size, wealth or technology. A nation becomes great because of the character of its citizen. First and foremost, my duty is to respect the constitution and the law. Rules are not restrictions, they are protections. Following laws, respecting national symbols and speaking up for justice shows that we value our country, not just benefit from it. Second, my duty is to be honest and ethical. A responsible citizen does not cheat, lie or misuse powers, whether in exams, online platform, public places. Integrity builds trust. Trust builds a strong nation. Third, my duty is to respect the diversity. India is not one culture, one region or one belief. It is unity in diversity. A responsible citizen respects all region, gender, backgrounds. Discrimination weakens society. Respect strengthens it. Fourth, my duty is to save environment, using less plastic, saving water, planting trees, keeping our surrounding clean are not small acts. They are bigger steps towards a sustainable future. If we destroy the nature today, there will be no future to offer. Finally, my duty is to lead by example. Changes does not start from the government alone. It starts with us. If every citizen becomes responsible, no one can stop our nation from rising. In conclusion, being a responsible citizen is not written in books, not decided by speeches, not shaped by promises. It is shaped by our actions. Our true responsibility is not speaking better than others. It is acting better than others. So let us not ask what has the nation does for me. Instead, let us ask what have I done for my nation today. This is the end of my speech. Thank you and wishing a very happy Republic Day. गोरखपुर पर गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें हमारे संविधान, हमारे अधिकार और कर्तव्य की याद दिलाता है। इसी भावना को शब्दों में पिरोने के लिए अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे कक्षा 12वीं की छात्र राधिका को, जो गणतंत्र दिवस के महत्व पर अपने विचार हिंदी भाषण के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी। आइए तालियों की गूंज के साथ राधिका का स्वागत करें। यहाँ उपस्थित सभी अध्यापक गण, मेरे साथियों व सहपाठियों को मेरा सुप्रभात। मैं राधिका कक्षा 12वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस पर भाषण लेकर उपस्थित हूँ। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस कहने को तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, पर फिर भी न हमारे पास ऐसे अधिकार थे, न सम्मान थे और न ही ऐसा अस्तित्व ही था। हमारे ही देश के कुछ क्रांतिकारियों व नागरिकों जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि सभी ने मिलकर संविधान को लिखने की शुरुआत की, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। दोस्तों, ये सारी बातें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, परंतु आज
आज मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगी कि क्या वास्तव में हम अपने संविधान का इतना ही मान रखते हैं जितना हमें इस देश के नागरिक होने के नाते रखना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो मैंने तो नहीं देखा या सुना कि हमारे संविधान में यह लिखा हो कि कुछ रिश्वत देके हम सरकारी कर्मचारियों को खरीद लें। मैंने तो नहीं देखा कि कहीं यह लिखा हो कि हम कानूनी नियमों को अपने पैसों के बल पर खरीद लें। मैंने तो नहीं देखा कि यह लिखा हो कि जो पृथ्वी जिसे हम पूजते हैं वो भारत जिसका गौरव समझाने के लिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उनसे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। उसी सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम भारत को हम औद्योगिकरण के चलते प्रदूषित करने जा रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने एक भाषण में कहा था कि यहाँ मैं संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं आया हूं, क्योंकि भले ही संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा गया हो, अंततः बुरा साबित हो सकता है अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे हैं। संविधान का सबसे प्रमुख दुरुपयोग 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल माना जाता है, जिसके चलते लोगों से उनके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हम सब भारतीय हैं, हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भले ही हमारे साथ कोई ना हो, परंतु फिर भी हमारे संविधान के कुछ नियम, कुछ कानून और कुछ अनुच्छेद हमेशा ही हमारे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।